أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لاکھوں سے ہے اور بے شمار درود السلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے سفید ریش بزرگوں، نوجوان عزیزوں، بچوں، دیگر سامعین و سامعات، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی اور اس حدیث کے تعلق سے چند باتیں سامنے آ چکی تھیں۔ مسند احمد کی روایت تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں سے بری رہنے والے شخص کو جنت کی خوشخبری دی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں ہو، جس کی روح اس حال میں قبض ہو کہ وہ ان 3 باتوں سے بری ہو، مرتے وقت، فوت ہوتے وقت 3 باتوں سے اگر وہ بری ہوتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور 3 باتوں میں ایک بات تھی کبر، گھمنڈ، غرور، دوسری بات تھی والدین، قرض نہ ہو، اور تیسری بات تھی اس کے اوپر جو بھی امانت تھی وہ امانت ادا کر دیا ہو، یعنی کوئی امانت اس پر نہ رہ گئی ہو۔ یہ 3 باتوں سے جو بری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کہا دخل الجنہ، وہ داخل ہوگا جنت میں۔ کبر کے بارے میں کئی حدیثیں آپ سن چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کا ڈیفینیشن بھی بتایا جو آپ کو سنایا گیا تھا۔ کبر کہتے ہیں الکبر بطر الحق و غمط الناس، حق بات سے منہ موڑ لینا، حق بات سے اعراض کرنا، اعراض کی کوئی بھی صورت ہو، حق بات کو ایکسپٹ نہیں کرنا، قبول نہیں کرنا، چاہے کسی بہانے سے اس کو ایکسپٹ نہ کرے یا سیدھا سیدھی کہے کہ میں قبول نہیں کروں گا یا ٹال دے، کیسے بھی حق بات کو، صحیح بات کو، سچ بات کو نہیں ماننے کی جو بھی صورت اب اختیار کیجئے، سب یہ ہے کبر۔ دوسری بات آپ نے کیا کہا؟ کسی کو بھی حقیر جاننا، غمط الناس نے کسی کو حقیر جاننا، اپنے سے کمتر جاننا، اپنے سے نیچ جاننا۔ ایک مسلمان کو آپ اپنے سے حقیر جانیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے حقیر جانیں آپ، اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اسلام والا ہے تو غلط ہے، یہ کبر کی علامت میں سے ہے۔ تو چلیے کبر کے بارے میں آپ تفصیل سن چکے ہیں، ہم آپ کو دوسری بات الدین کے تعلق سے، قرض،
मौत के वक्त आप पर कोई कर्ज नहीं रहना चाहिए। एक हदीस आप सुन चुके हैं, बारहा दर्स में बैठने वाले हमारे हजरात बार बार सुन चुके हैं। ये बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। सलबा बिन अखवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा लाया गया कि आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। तो आपने सरे मजलिस सवाल किया कि क्या इस पर कोई कर्ज है। आपने सबसे सवाल किया, बड़ी महफिल में सवाल किया। नमाज के वक़्त यानी जब जनाजा हाजिर हुआ तो आपने सवाल किया, क्वेश्चन किया कि इस पर किसी का कर्ज है। इसी हदीस की रोशनी में अगर इमाम को या जनाजे पढ़ाने वाले को अगर डाउट हो, शक हो, तो पूछना चाहिए। उस मौके पर ऐलान करके पूछना चाहिए। हर जनाजे में नबी ने नहीं पूछा, हर जनाजे में नहीं पूछा, इसमें पूछा। मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में कुछ मालूम रहा हो या कुछ डाउट हो या शक हो कि इस पर कर्ज होगा। अभी गांव का बहुत ही आसूदा हाल आदमी का जनाजा आएगा तो क्यों पूछेगा, वो तो कर्ज क्या लेगा। मगर यूं गरीब या कुछ ऐसा होगा तो आदमी हो सकता है कर्ज लिया हुआ हो। बहरहाल इमाम या जो जनाजा पढ़ाएगा वो पूछ सकता है। इस हदीस की रोशनी में दलील है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, दरियाफ्त किया सामने वाले से, यानी लोगों से, कि क्या इस शख्स पर किसी का कर्ज है। तो साहब ने कहा, एक साहब ने, हाँ अल्लाह के रसूल कर्ज है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि भाई जिसका कर्ज हो माफ कर दो, आज जैसे होता है, आज आमतौर पर ऐसा होता है। अगर कहीं पूछ भी लिया गया, हाँ भाई अगर किसी का कर्ज वर्ज हो, कुछ गलती उलती है तो माफ कर दीजिए, आपके बोलने से माफ हो जाएगा, ऐलान करने से माफ होगा? नहीं होगा। वो करेगा दिल से तब ना माफ होगा। तो ये सही नहीं है, ऐसे कहने से कोई फायदा नहीं है। बल्कि अगर पता चले तो उसी वक्त कर्ज अदा करने की सूरत ढूंढनी चाहिए, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढूंढा। बल्कि एक ऐसा रवैया इख्तियार किया, अपने आप हो गया। आपने क्या कहा, इस पर कर्ज है, अच्छा तो मैं फिर जनाजा नहीं पढ़ता, तुम लोग पढ़ लो और अपना दफन कर दो। ये इस बात की दलील है कि कर्ज अगर रह जाए तो उसके जनाजे में आप जो भी दुआ पढ़ेंगे कबूल नहीं होगी। जब तक कर्ज नहीं खत्म होता है, बहुत डेंजरस है हम लोगों के लिए, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए ये इतनी अहम बात है, कुरान में सबसे लंबी आयत इसी कर्ज पर नाज़िल हुई। इज़ा तदायनतुम बिदैनिन फक्तुबूहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू करके अल्लाह ने मुखातिब किया ईमान वालों को कि लोगों, ईमान वालों, जब भी तुम कुछ लेन देन करो कर्ज तो लिख लो, क्योंकि बड़ी अहम बात है ये। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं नहीं पढ़ता, तुम लोग पढ़ लो, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत कड़ी बात थी ना। अब अगर ऐसे आज कह दिया जाए तो जनाजे के जो वारिसीन हैं वो बहुत बुरा मान जाएगा। ये मौलाना, अरे चला हटाओ इसको, दूसरा कोई मौलाना नहीं मिलेगा क्या? बुला लेगा, वो पढ़ाएगा, आया बड़ा। लेकिन ये भलाई के लिए आप जिसको मैयत दफन करने जा रहे हैं, अगर कोई आलिम ऐसे कह दे तो उस मैयत का असल खैर खा है वो इमाम या वो आलिम या वो जनाजा पढ़ाने वाला, तुमसे ज्यादा खैर खा है। क्यों? वो चाह रहा है कि इसकी मगफिरत हो जाए। तुम लोग नहीं चाह रहे हो कि मगफिरत हटाओ, दूसरा को पढ़वा लेंगे। नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत उसी मैयत के लिए, मरने वाले के लिए खैर खाई है ये, कि कम से कम दफन होने से पहले आदमी देखकर या तो दिल से माफ कर देगा, बोल देगा सरेआम कि मैं माफ करता हूं, या कम से कम आदत हो जाएगा, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा।
तो बहरहाल बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको और अच्छा मानना चाहिए कि हाँ भाई ये सही बात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं इसका नहीं पढ़ाता, तुम लोग पढ़ लो और दफन कर दो। आपने ये नहीं ऐलान किया ना कि जिसका कर्ज है माफ कर दो, ऐलान नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ऐसे कहने से कोई फायदा भी नहीं है। तो सीधा आपने इनकार किया, और नबी का जनाजा ना पढ़ाना, इनकार का मतलब कि बहुत अहम बात है, मग़फ़िरत नहीं होगी। तो सहाबा किराम थे, आज हमारे जैसे सख्त दिल लोग नहीं थे, सहाबा किराम थे। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं इसका कर्ज अदा कर दूंगा, जिसका भी ये कर्ज इस पर है मैं अदा कर दूंगा। तब जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी अहम बात है। पहली बात, कर्ज लीजिए मत, कोशिश ही कीजिए, बहुत मजबूरी, कर्ज लेना गलत नहीं है, जायज है, मगर बहुत मुश्किल है तब लीजिए। क्यों? यूं लेते रहिए कि आदत बन जाएगी, इससे भी लिए और उससे भी लिए और उससे लिए, मर गए पता नहीं चला, रह गया, फंस जाइएगा, मग़फ़िरत नहीं होगी। जिसकी नमाज नबी ना पढ़े उसकी मग़फ़िरत कैसे हो सकती है? ये दलील है। मग़फ़िरत नहीं उस शख्स की जिसका कर्ज रह जाए। और इससे भी मालूम हुआ कि कर्ज किसी का चुका देना बहुत बड़ा काम है, बहुत अहम काम है। इसलिए कभी ऐसा मौका मिल जाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अगर दे रखा है नेमत, तो वो कर्ज किसी का चुका देना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी क़यामत के रोज अगर कहीं रह गया था आपका, चुका देगा, गुनाह रह गया तो मिटा देगा। तो बहुत अहम काम है। तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम पूरी हदीस नहीं सुनाए, मुख्तसर सुनाई, उसमें एक शख्स का और जनाजा लाया गया। आपने पूछा कर्ज है? नहीं है। तो कहा कि ठीक है हम पढ़ देते हैं, मगर जिसका कर्ज था उसका आपने रोक दिया। तो अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो गए कि मैं कर्ज चुका दूंगा अल्लाह के रसूल, इसका जो भी कर्ज है। तब जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। तो कर्ज बहुत ही हमारे लिए खतरनाक है, दुनियावी एतबार से भी कर्ज रहता है जब सर पर, हमेशा टेंशन बना रहता है, इतना पैसा कर्ज है मैं कैसे चुकाऊंगा, वो एक फिक्र, एक टेंशन रहता है। देना तो अलग है, एक टेंशन भी रहता है। इसलिए बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप लेते हैं कहीं लिखिए, गवाह बनाइए और लिखिए, ताकि अगर मर भी गए आप तो लिखा हुआ तहरीर, लिखी हुई तहरीर कोई तो देखेगा, उसके बाद आपका कर्ज चुकाएगा। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, वरासत की बात बयान करते हुए सूरह निसा में, कि जो भी वरासत की तकसीम होगी कर्ज, मय्यत का कर्ज चुकाने के बाद, एक बात याद रख लीजिएगा, आज सूरह निसा आयत नंबर 6-7 से पढ़िएगा, आगे 10, 12, 11 आगे, तो पूरा वरासत के ताल्लुक से पूरी तफसील मौजूद है, पढ़ लीजिएगा जरूर एक बार। उसमें है वरासत की तकसीम, जो आजकल बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे लोग, भाई लोग तैयार रहते हैं, मेरा बाप कम मरेगा और प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। ये बात अच्छी तरह आप सुन लो कि वरासत की तकसीम तब होगी जब उसका पूरा कर्ज चुका दिया जाएगा, उससे पहले वरासत की तकसीम नहीं है। मरने के बाद भी मालूम कीजिए। और जो हमारे भाई लोग कभी जाते हैं किसी तनाज़ुर को हल करने के लिए, प्रॉपर्टी की तकसीम करने के लिए, आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और आपके पास ये अमानत इल्म के तौर पर रखता हूं, अल्लाह ने रखा है कि आप जब भी जाइए तो पहले पूछिए इसका कर्ज है या नहीं है, तब तकसीम होने दीजिए। कर्ज जैसे पता चले, पहले प्रॉपर्टी का कितना भी है पहले उसका कर्ज चुकाइए, तब तकसीम, तभी किसी वारिस का हिस्सा बनता है। क्योंकि अल्लाह ने ऐसे ही कहा, कर्ज चुकाने के बाद ये हिस्सा है, ये तकसीम है। अल्लाह ने पूरा डिक्लेयर करके कहा है, तफसील के साथ कहा है। इसलिए कर्ज बहुत ही डेंजर है। तो अगर कोई शख्स मरता है और प्रॉपर्टी की तकसीम होती है, तो बच्चों को चाहिए सबसे पहले कि मेरा बाप का कर्ज कैसे, कहाँ कहाँ है, किस किस से लिया था, किधर किधर है। चाहे पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए कर्ज चुकाने में, लेकिन चुकाइए।
उसके बाद ही कुछ तकसीम आपको मिलना चाहिए। और कुरान की रूह से उससे पहले आप प्रॉपर्टी का हकदार नहीं, एक पैसे का हकदार नहीं है जब तक आप कर्ज नहीं चुकाते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस बात है पूरी तफसील के साथ। वो एक मशहूर वाकया हदीस का नहीं है, कुरान का नहीं है, मगर बहुत सबक आमूज एक आलिम साहब ने ऐलान किया कि भाई इस मय्यत का कर्ज है, कौन चुकाएगा? कोई चुकाने के लिए तैयार नहीं था। तो एक बेटी आती है, पता चलता है कि मेरे बाप का जनाजा रखा हुआ है कर्ज की वजह से। कर्ज वाले ने कहा कि कर्ज चाहिए हमको। तो बेटी आती है, कहे कि मेरे जो भी जेवरात हैं सब मैं देती हूँ, ये लीजिए, और बाकी का कर्ज मैं और बाद में इंतजाम करके दे दूंगी। और इस तरह से नमाज जनाजा हो जाता है। फिर उसके बाद तब वरासत की तकसीम आती है कि इसके इतने सारे पैसे फला जगह है, इसके कौन हकदार हैं? तो बेटा भी आता है और भी सब वारिसिन आ जाता है। इमाम साहब ये फैसला करते हैं कि अभी तक तो कोई वारिस नहीं था जब इसका कर्ज था, और अभी ये वारिस कहां से आप लोग आ गए? इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि पूरी वरासत का मालिक वही बेटी है, क्योंकि मैंने उसी को देखा है जो वरासत के तौर पर, वारिस के तौर पर सामने आई थी, इसलिए पूरा माल उसी को जाना चाहिए। ये सबक आमूज क्यों? आज लड़के लोग तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इससे भी पता चलता है कि माँ बाप के मरने के बाद की तकलीफ को भी लड़की एहसास करती है। आज चिल्लाते हैं ना आप लोग, लड़का नहीं हुआ तो मुंह भारी करके लटकाते हैं और कहते हैं और वो बेटी हुई है। लेकिन याद रखिए, जिंदा में भी और मरने के बाद भी अगर सही हमदर्द है हकीकत में तो बेटी है। उस बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ, सब कुछ बेचने के लिए तैयार, कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो गई। मालूम नहीं हुआ कि कर्ज चुकाने के बाद ही विरासत की तकसीम होनी चाहिए, या अल्लाह ने ऐलान किया। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये दूसरी बात थी कि अगर कोई शख्स कर्ज नहीं रहा, मकरूज नहीं रहा मरते वक्त, तो उस जन्नत में दाखिल होने की दूसरी बात थी। तीसरी बात अमानत। अमानत के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही कहा सूरह निसा में आयत 85 में, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ये हुक्म है, ऑर्डर है, किसी भी किस्म की अमानत अगर आपके पास है तो उसको वापस करो, दो उन लोगों को जिनकी अमानत है। मरने से पहले अमानत वापस कर दो, वरना मरोगे तो फिर जन्नत की कोई गारंटी नहीं है। वो चीज अगर हमारे पास रह गई, किसी ने अमानत के तौर पर रखा था और मर गया, पता नहीं चला और बच्चों ने तकसीम कर लिया, तो आप फंसोगे, आप बचोगे नहीं। तो दूसरी बात भी बच्चों को याद रखनी चाहिए कि शायद मेरे बाप के पास किसी ने कुछ रखा हो, यूं दे रखा हो कोई चीज अमानत के तौर पर, वो भी पूछना चाहिए। बहरहाल ये तीन बातें थीं जिसके ताल्लुक से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन फारक रूहुल जसद, जिस शख्स का रूह उसके जिस्म से अलग होता है, वह बरीउम मिन सलास, और वो तीन चीजों से बरी होता है, दखल अल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। इसका मतलब कि तीनों में से कोई चीज अगर रहती है तो कोई गारंटी नहीं है, सजा होकर या कैसे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें इन तीनों चीज़ों को याद रखना चाहिए कि मरते वक्त ये तीनों चीज़ें हमारे पास ना हो, किसी की अमानत ना हो, किसी का कर्ज ना हो, और इसी तरह से किसी को हकीर न जाने, हक बात से न मुँह मोड़े। अल्लाह हम सबों की कमियों को माफ़ फरमा दे, हम सबों की गलतियों को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हम सभी लोग कमज़ोरी ईमान वाले हैं, हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है, या अल्लाह हमारी कमज़ोरी को दूर फरमा दे। अल्लाह हम सबों के ईमान को मजबूत फरमा दे। अल्लाह हर तरह से हम लोगों को हर किब्र से महफूज फरमा ले, अल्लाह कर्ज से महफूज फरमा ले। अल्लाह जिसकी अमानत है अल्लाह उसे वापस कर देने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह हम सबों का खात्मा ईमान पर फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।